Friends, welcome to my channel Code Destination. So as we are continuing this challenge, one code one day. So today's topic is array, and today we will discuss one lead code problem, very famous lead code problem, majority element. And by the help of this we can learn how we can approach this problem, how we can use hash map, and how we can optimize space in the question. So yeah, let's start. So let me share my screen. Yeah, so this is the problem number 169, majority element, which is level easy. So we will solve this problem. First we will try to solve using brute force approach, how we can think about this problem, how we can find the easy way to solve it. Then we can optimize that time complexity and space complexity, and we will find, in this way we will find the best solution for this question. So yeah, let me read this question. So basically we have given an array which is size n, and we have to return the majority element int, and it is defined what is the majority element. Majority element is the element which frequency is greater than n by 2. Basically that element should present greater than half of the size of that array. So, and it is also mentioned, you may assume that the majority element always exists in the array. So it is also confirmed that always we can get an answer. So by looking this question, what we can think, like suppose I'm taking this example, example number 1. So here the element 3 is present 2 times, and element 2 is present 1 time. So the size of array is 3, so 3 by 2 is 1, and 3 is present 2 times, so 2 is greater than 1. That's why it is returning 3 output here. In the second example, the element 2 is present 4 times, the element 1 is present 3 times, and the element 2 is present 4 times, which is greater than half of the size. That's why it is returning 2 here. So basically we can by looking this problem, we can think like that for every unique element, like we are counting the frequency of that element, like in array how many times that element is present, and if that element is present greater than size of the array, so we will return that element. So this is the brute force approach. So first we will implement the brute force approach, and after that we will optimize it. So quickly let me share my whiteboard. So suppose I'm taking this example to 111, this example I'm taking. So what is the brute force approach? First we will count the frequency of each element. So like the frequency of 2 is 7, the frequency of 1 is 3, the frequency of 4 is 2, the frequency of 5 is 1. So we can see the frequency of 2 is 7, which is greater than what the size of the array, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Okay, 13. So size of the array is 13. So 13 by 2, 6. So 7 is greater than the 6. So the majority element in this case is 2. So we have to return 2 in this case. So yeah, same approach we will follow and implement in the brute force manner. So like for every element we have to count the frequency. So for that I will use hash map in the first key. I will use the element, and for the value I will use the frequency. So in this way I can define frequency hash map here. Okay, like that. Okay, so first we will store we will count the frequency and store for every element. So I will iterate this array first. Okay, so suppose I get first element from the array. So first I will check whether that element is present in our frequency map or not. So frequency dot contains key. So this function will check whether that key is available or not. So if it is not available, it means that element comes first time. So contains key here,
so that comes first time. So what I will do, frequency dot put, I will store that element with the one frequency because it comes first time. And in else condition, suppose that element comes second time, so already that element is already present, so in that case the condition should be false, so it will comes in the else condition. So what I will put here, so for that element I will get the previous frequency. So frequency dot get previous frequency for that element, and I will increase one because it comes second time. So in this way I can get a frequency map for every element, and simply I will loop map again, map dot entry, it is integer, then in that case entry set I have to take. Okay, so I will check if my entry dot value, basically value gives the frequency, is greater than the size of half of the size of the array, then I will return that value. So value is stored in the key, so I will get entry dot get key. So yeah, it will return the key. Let me run it. Okay, it is giving some runtime compile time exception. Okay, it is runtime exception. So here it is, oh, I use frequency here, so this is just misspelled. Okay, here as well, and I think everywhere is fine. Okay, here we have to return anything because it is return type, integer return type, so I have to return it. So let me run it. Okay, so it is accepted, both cases pass. Let me submit it. Yeah, it is accepted with 13 millisecond and 26.34% of user it beats. So yeah, this is the brute force approach. So let me discuss quickly the time complexity and space complexity for the brute force approach. So here we can see we are using only one loop, and we are doing the constant operation here in that. So it is big O of n operation we are taking, and is the size of array, and we are defining the hash map, and in the hash map we are storing the value as a key. So the max value is the size of the nums, so that will take a big O of n space. So here we can see big O of n space, and we are also iterating in the map, so it is also big O of n operation. ओके, सो ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ पे ये टोटल ऑपरेशन बिग O ऑफ n प्लस बिग O ऑफ n, सो ओवरऑल इट इज़ बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O ऑफ n. सो इट इज़ अ बिग O ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी एंड बिग O ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सॉल्यूशन है. इसको हम देखते हैं कैसे हम इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, कैसे हम इसको स्पेस को रिमूव कर सकते हैं. तो उसके लिए मैं अपना वाइट बोर्ड शेयर करता हूँ. ओके, तो जैसे कि सेम एग्जांपल लेते हैं हम. जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला है कि एक मेजॉरिटी एलिमेंट तो होगा ही, जैसे कि क्वेश्चन में आप मेंशन है, आप देख सकते हो, यू मे अज्यूम दैट द मेजॉरिटी एलिमेंट ऑलवेज एग्जिस्ट. तो ऐसा सॉल्यूशन कोई एक होगा जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा. तो मैंने एक एग्जांपल एज्यूम किया, सपोज दिस वन. तो यहाँ पे मैंने जैसे कि मेजॉरिटी एलिमेंट 1 लिया, और ऑब्वियस है कि जब मेजॉरिटी एलिमेंट वो है जो n/2 से ज़्यादा बार की फ्रिक्वेंसी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस है कि सपोज मेरा अगर n साइज का एरे है, n/2 है, तो एटलीस्ट इस लेवल तक ये एलिमेंट स्टोर होगा ही. हाँ, ऑब्वियस है कि स्टार्टिंग से ये सेम सीक्वेंस में नहीं होगा, हो सकता है एलिमेंट अलग अलग इंडेक्सेस पे हो, बट हाँ हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा सारा एलिमेंट एटलीस्ट हाफ ऑफ द एरे लेगा. तो मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ पे, हम कैसे यहाँ पे अप्रोच, हम कैसे लॉजिक सोच सकते हैं. जैसे कि मैंने इसके लिए 3 केसेस लिए हैं. फर्स्ट केस यहाँ लिया है मैंने, सेकेंड केस यहाँ लिया है यहाँ पे मेरा 1 सीक्वेंस में नहीं है, और थर्ड केस मैंने लिया है उस सीक्वेंस को और बदल कर.
तो हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है n/2 है, तो हम क्या करेंगे, जो भी डिफरेंट एलिमेंट है इसके बाद उस एलिमेंट से हम सारे 1/1 मेजॉरिटी एलिमेंट को कैंसिल करेंगे। जैसे कि हमारा एक डिफरेंट एलिमेंट 2 है, तो 2 से हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट का 1 है ये कैंसिल हुआ, 3 से हमारा ये मेजॉरिटी एलिमेंट कैंसिल हुआ, एंड अगेन 2 आया तो 2 से हमारा ये कैंसिल हुआ, ये अगेन 3 आया तो 3 से हमारा ये 1 कैंसिल हुआ। तो इन द एंड हमारे पास 1 बचता है, तो हमारा जो 1 होगा इस केस में मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें हमारा जो 1 है सेम कंटिन्यूस सीक्वेंस में नहीं अवेलेबल है। तो देखते हैं, जैसे कि मेरा 1 आया तो 1 का फ्रीक्वेंसी 1 है, सपोज मैंने 1 से 2 कैंसिल किया, फिर 3 आया तो 3 और 2 डिफरेंट है तो दोनों का फ्रीक्वेंसी कैंसिल कर दिया। सपोज़ फिर 1 आया, 1 से मैंने 3 को कैंसिल कर दिया, फिर 1 आया तो ये सेम है तो इसे कैंसिल नहीं करते हैं। तो इस तरह हमारे पास सारे एलिमेंट 1 के बच गए हैं। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे 1 बचता है, तो हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी एलिमेंट 1 हो गया। तीसरा केस देखते हैं, इसमें क्या है, जैसे कि हमारा 1 है तो 1 से 2 हमारा डिफरेंट एलिमेंट है तो कैंसिल कर दिया, और 1 से ये 3 कैंसिल कर दिया, डिफरेंट है, 1 से 2 कैंसिल किया मैंने, और इस 1 से मैंने ये 3 कैंसिल किया, तो हमारा लास्ट में 1 बचते हैं। तो आप देख सकते हैं तीनों केस में हमारे 1 बचेंगे, और हमारे जो देख सकते हैं यहाँ पे 3 1 है, 1 2 1 है, सॉरी यहाँ पे मुझे एक्चुअली 1 के लिए कैंसिल करना है, मतलब जैसे कि 1 के लिए 2 कैंसिल किया, 3 के लिए सपोज़ ये डिफरेंट है, हाँ ओके इट इज़ फाइन, तो ये 2 और 3 डिफरेंट है तो ये भी कैंसिल हुआ, और 1 3 डिफरेंट है तो ये कैंसिल हुआ, ओके इट इज़ करेक्ट। सो लास्ट में जो बचेगा वो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। ओके ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लॉजिक यहाँ समझ सकते हैं कि हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है 1/2 से ज़्यादा बार अवेलेबल होगा, तो ऑब्वियस है कि कैंसिल, और ये हमारा जो डिफरेंट एलिमेंट है ये n/2 से लेस बार अवेलेबल होगा, तो हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है ये n/2 से ज़्यादा बार अवेलेबल होगा, जो हमारा अदर्स एलिमेंट है n/2 से लेस अवेलेबल होंगे, आई मीन जो एलिमेंट होंगे। तो ऑब्वियस है कि जब हम टोटल लेस एलिमेंट से इनको सारे रिमूव कर रहे हैं, जो हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट है, तो हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट है उसकी फ्रीक्वेंसी, आई मीन मेजॉरिटी एलिमेंट कुछ एरे में बचेंगे। तो इस तरह हम इस लॉजिक से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज़ मेरे पास 5 साइज़ का एरे है, 1 2 1 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 जो है 3 बार आया है, तो अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिख लूँ तो 1 1 1 आया है, और यहाँ पे 2 3 आया, तो ये 2 इस 1 को कैंसिल करेगा और 1 3 को कैंसिल करेंगे। तो बेसिकली जो भी डिफरेंट है उसे अगर हम कैंसिल कर दें, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 से अगर 2 कैंसिल कर दें, फिर ये डिफरेंट आया तो 1 से 3 कैंसिल करें, तो लास्ट में हमेशा 1 ही बचेगा। इसको अगर हम थोड़ा इसके इंडेक्सेस को बदल देते हैं, दिखते हैं, तो जैसे कि मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 लूँ तो ही, और यहाँ पे सपोज मैं 2 लेता हूँ और यहाँ पे 1 लेता हूँ, ओके, और यहाँ पे 1 लेता हूँ, ठीक है। ऐसा कैसे लेते हैं जिसमें 2 मेजॉरिटी एलिमेंट हो, ओके यहाँ पे 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा 1 से 3 कैंसिल होगा, 2 से 1 कैंसिल होगा, यहाँ पे 3 हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। यहाँ देख सकते हैं आप मेजॉरिटी एलिमेंट 2 हैं, 1 भी यहाँ पे 2 बार आया है, 1 की फ्रिक्वेंसी 2 बार है और 3 की फ्रिक्वेंसी 2 बार है, तो यहाँ पे 2 मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो एट द लास्ट हमें क्या होगा, हमें एक मेजॉरिटी एलिमेंट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली ये इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में एक्चुअली डिफरेंट, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। ओके इट इज़ मेंशन मोर देन, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली, 2 मेजॉरिटी एलिमेंट कांट बी पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पे क्या है, जैसे कि 5 साइज है तो 5/2 यहाँ पे 2 हो रहा है, तो 2 साइज से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे जो 2 एलिमेंट मिल रहे हैं 2 साइज़ के मिल रहे हैं, तो ये दोनों मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होंगे। तो यहाँ पे हमारा कौन सा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा, कोई मेजॉरिटी एलिमेंट नहीं होगा इस केस में। बट
ऐसा टेस्ट केस पॉसिबल नहीं है, ये टेस्ट केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन में मेंशन है कि एटलीस्ट वन मेजॉरिटी एलिमेंट होगा ही, तो ये टेस्ट केस ही पॉसिबल नहीं है। या तो यहाँ पे 3 होगा तो ऐसे होगा 1 3 2 1 3, एंड यहाँ पे भी 3 होगा, ये टेस्ट केस पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे 3 टाइम्स 3 है। या ऐसे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा 1 1 3 2 एंड 1, तो यहाँ पे वन मेजॉरिटी एलिमेंट है। तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन कि वन एटलीस्ट वन मेजॉरिटी एलिमेंट होगा ही। तो सेम अप्रोच को हम फॉलो करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके, सो लेट मी रिमूव ऑल दिस थिंग फर्स्ट। ओके, सो हमें क्या करना है, इसमें हम एक काउंट लेंगे जो स्टार्टिंग में। ओके, सपोज पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस एलिमेंट ले लेते हैं जो हमारा नम्स का जीरो इंडेक्स वाला होगा। और जीरो इंडेक्स तक बात करें तो हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा एम मैंने इसको डिनोट किया है, तो यहाँ पे जीरो जो इंडेक्स पे होगा मेजॉरिटी एलिमेंट होगा। और मैंने एक काउंट ले लिया जिसका काउंट जो स्टार्टिंग में है वो 1 है, क्योंकि हमने एक प्रीवियस एलिमेंट ले रखा है जो मेजॉरिटी एलिमेंट है, और काउंट 1 ले लिया है क्योंकि हमने एक एलिमेंट ऑलरेडी ले रखा है। तो मैंने लूप लगाया i इक्वल टू 1 से i लेस दैन नम्स डॉट लेंथ और i प्लस प्लस। ओके, तो अब क्या करना है हमें, यहाँ पे हमारा 2 केस पॉसिबल है। अगर हमारा जो करंट एलिमेंट है, मैंने एक करंट एलिमेंट ले लिया CLM, करंट एलिमेंट है नम्स के ith इंडेक्स का। अगर मेरा करंट एलिमेंट प्रीवियस एलिमेंट के नॉट इक्वल टू है तो क्या करना है हमें, नॉट इक्वल टू है तो मैंने बताया था ना कि जो काउंट है वो माइनस माइनस होगा क्योंकि वो कैंसिल कर रहे हैं। तो काउंट की वैल्यू मैंने काउंट -1 कर दिया, और एल्स कंडीशन में हमने क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को +1 करेंगे जैसे सेम एलिमेंट आएगा इस केस में। तो इस तरह हमें क्या रहेगा, सारे एलिमेंट कैंसिल होंगे। बट जैसे ही हमारा सारा एलिमेंट कैंसिल हो जाते हैं और काउंट 0 आता है, तो उस केस में हमें क्या करना है, इफ़ मेरा काउंट अगर 0 0 है, इसका मतलब सारे एलिमेंट ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं। लाइक इन दिस केस 2 2 आया तो यहाँ पे काउंट 2 हुआ, और 1 1 से ये कैंसिल हुआ। तो जब नेक्स्ट एलिमेंट 1 आएगा तो काउंट 0 हुआ। तो हमें क्या करना है, हमें प्रीवियस एलिमेंट में हमें जो है करंट एलिमेंट ले लेना है कि हमारा जब प्रीवियस एलिमेंट होगा अब करंट एलिमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट होगा नाउ, वो क्या होगा, हमारा करंट एलिमेंट, क्योंकि यहाँ से हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट, ये तो कैंसिल हो गया जितने भी इक्वल थे, यहाँ तो हमारा मेजॉरिटी एलिमेंट 1 हुआ, तो हमने मेजॉरिटी एलिमेंट को अपडेट कर दिया करंट एलिमेंट से। ठीक है, तो यहाँ से हम इस मेजॉरिटी एलिमेंट को रिटर्न करेंगे। देखते हैं रन करके क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी एलिमेंट है एरर दे रहा है, क्या दे रहा है, ओके ओके, प्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, so it is p element actually. Okay, I think everything is looking fine. Okay, both the test cases passes. Let me submit it. I follow the same approach which I discussed. Okay, it is taking 2 milliseconds. Yeah, so it is more better than, and it is 73.33%. It is beating 73 point at approx 73 users Java. Okay, so this is the basic so this is the optimized approach. So let me discuss the time complexity and space complexity for this question. So we are using the loop. So यहाँ पे हम लूप यूज़ कर रहे हैं nums डॉट लेंथ तक। so इसका क्या होगा, जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा big O of n होगा, क्योंकि टोटल n इटरेशन कर रहे हैं। और बाकी यहाँ पे हम देख सकते हैं ये सब कांस्टेंट ऑपरेशन है, तो big O of 1 है। so या टोटल ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग ऑफ n। एंड अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने कोई भी एक्स्ट्रा एरे या हैश मैप यहाँ यूज़ नहीं किया है, हमने सारे कांस्टेंट वेरिएबल यूज़ किए हैं। तो ओवरऑल स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, बिग ऑफ 1 होगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने कैसे इसे ऑप्टिमाइज़ किया स्पेस से, और कैसे हमने यहाँ पे लॉजिक बनाया कि हमारा जो मेजॉरिटी एलिमेंट गेटर है तो एरे का हाफ पार्ट से ज़्यादा लेंगे, तो हम क्या करेंगे, जो अदर एलिमेंट्स हैं उससे कैंसिल कर देंगे, और जो लास्ट में हमारा एलिमेंट बचेंगे वो हमारे मेजॉरिटी एलिमेंट ही बचेगा। ये ठीक उसी ऐसे है जैसे कि हमारे अगर 2 वार हो रहे हैं, तो वार में जो नंबर ऑफ़ सोल्जर्स अगर जिस साइड ज़्यादा होंगे वो सोल्जर्स लास्ट में जो एक दूसरे से लड़ेंगे, और जो लास्ट में बचेंगे सोल्जर्स
तो जो सोल्जर बचेंगे उस टीम की वही टीम विनर होगा। और लास्ट में जिसका सोल्जर बचेगा, जो सोल्जर बचेगा वही मेजॉरिटी सोल्जर होगा। सो ठीक है, उसी वही कॉन्सेप्ट है ये, सिंपल लेमन लैंग्वेज में। सो इस तरह हम इसे ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। या तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम रोज़ ऐसे ही वीडियो डालते रहेंगे। हम रोज़ एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, उसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, कैसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच लगाएं, पहले कैसे उसे ऑप्टिमाइज़ करें। या तो थैंक यू फ्रेंड्स।